اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن کہاں ہیں ہم۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ آج ہم بات کریں گے امام وقت کے حوالے سے اور بعد از عزاداری ہمارے رویے میں تبدیلی اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں۔ آئیے لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آپ نے امام زمانہ کو کوئی خاص تحفہ بھیجا، آپ کی نظر میں ان کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کی جو ظہور ہے اس کے منتظر رہیں، اور ان کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح سے ہوں کہ مولا کا ظہور ہو سکے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ اور شب جمعہ کیا مطلب، شب جمعہ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن عام دن اور عام زندگی اور عام لمحات میں بھی ہمارے عمل میں ایسی بہتری ہونی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم سے راضی ہوں اور ان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ آج آپ نے امام زمانہ کو کیا تحفہ بھیجا؟ آج کے دن کا بہترین تحفہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ سب سے بہترین تحفہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ امام جو ہیں وہ ہماری ہر چیز سے خوش ہوں، اور وہ یہ دیکھیں اور اس چیز کو دیکھ کے اور ہمارے سارے دن کے اعمال جو ہیں وہ امام کے حضور پیش ہوں تو ان کو کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہو۔ وہ یہ نہیں سوچیں کہ یہ ہمارے اس سے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے ان کے اعمال کیا ہیں۔ ہمارے اعمال بہترین ہونے چاہیے۔ ہمیں نماز، امام زمانہ کی نماز پڑھنی چاہیے، امام زمانہ کو سلام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے مولا کو سلام کریں اور اس کی دعا کرنا چاہیے، تاکہ مولا جو ہیں ان کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے اور ان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے مولا جو ہیں وہ جلد سے جلد ظہور فرمائیں اور آ کے جناب سیدہ کے روضے کو تعمیر کریں اور ہم اپنے بیوی کے روضے پہ زیارت کرنے جائیں۔ آمین۔ آپ نے امام زمانہ کو کیا تحفہ بھیجا؟ آج کا بہترین تحفہ کیا ہے؟ شب جمعہ میں ہمیں یہ ہے کہ اذکار ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو ہم رات کو جو ہے پوری رات کوشش کرتے ہیں کہ پوری رات ہو سکیں، جتنی ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت ہی مطلب گناہ گار لوگ ہیں، مگر یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ہم لوگ امام زمانہ کے استقبال کے لیے کسی طور پر وہ نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو چیزیں وہ جو ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں نہیں ہیں، رائج نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جب آئیں گے تو پتہ نہیں کس طرح ہم ان کو منہ دکھائیں گے اپنا۔ بہرحال ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طور پر جو ہے معاملات کو حل کریں۔ امام زمانہ کو آپ نے کیا تحفہ بھیجا؟ آج کا بہترین تحفہ کیا ہے؟ آج کا بہترین تحفہ تو نماز ہے، امام زمانہ کی نماز ہے جو پڑھتے ہیں سب لوگ۔ اور ابھی اس وقت ذہن اتنا کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے امام زمانہ کو کیا تحفہ بھیجا؟ آج کا بہترین تحفہ ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہوں ہارٹ پیشنٹ 21-22 سال سے زیادہ ہوں۔ میں آج شب جمعہ کے حساب سے اپنے والدین کے لیے اور مرحومین جو مومن ہوتے ہیں ان کو نماز 2 رکعت پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کے ساتھ بخشتا ہوں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہوں۔ جو کرتا ہوں وہ بتا رہا ہوں ہر جمعرات کو، بلکہ روزانہ تو فاتحہ پڑھتا ہوں مومنات کے لیے اور والدین کے لیے الگ الگ، لیکن شب جمعہ کو اس کے ساتھ 2 رکعت نمازیں بھی ان کے لیے بھیجتا ہوں۔ دیکھیں، شب جمعہ کی تو اپنی ایک خاص اہمیت ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ خصوصاً امام زمانہ سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ اور اب ہم عبادت انجام دیں گے، ابھی مغرب ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی مطلب جو واجبات ہیں وہ تو ادا کریں گے۔ باقی ہے کہ امام سے توسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی رات ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کیا جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو کوشش انشاءاللہ یہ ہو کہ آج کی شب جو ہے وہ امام کی یاد میں اور امام کے محبت میں گزرے۔ امام زمانہ کو کیا تحفہ بھیجا؟ بہترین تحفہ آج کا کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تحفہ ہے، ہم جو ہے یعنی کہ اس معاشرے میں اس وقت جو ہے یعنی کہ عبادت میں زیادہ گزارے اور جھوٹ سے پرہیز کرے، فریب سے پرہیز کرے، یعنی کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے
मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्श कदम पे अमल करने की कोशिश कर लें। आपने इमाम ज़माना को क्या तोहफ़ा भेजा, आज का बेहतरीन तोहफ़ा क्या है? आज का बेहतरीन तोहफ़ा तो शब जुमा हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं और उनको ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं और उनको हम हमेशा ताज़ियत पेश करते हैं और गम हुसैन का, करबला का। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साबित अली सोलंकी, रानीपुर। आपने इमाम वक्त को आज क्या तोहफ़ा दिया, आज का ख़ास तोहफ़ा क्या होगा? हमारा आखिरी तोहफ़ा ये इमाम ज़माना का है, तो जल्दी ज़रूरत है। इस दुनिया में इस वक्त जुल्म बहुत है, इमाम महदी के सिवाय कोई हल नहीं करेगा। हमारा तोहफ़ा ये है। आज के दिन आपने इमाम ज़माना को क्या तोहफ़ा भेजा, बेहतरीन तोहफ़ा आज के दिन के लिए क्या है? इमाम ज़माना को बेहतरीन तोहफ़ा यही है कि रोज़ाना सुबह शाम हम मौला को सलाम करते हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है और हमारी तरफ से एक तोहफ़ा भी है कि मौला को सलामती के लिए उनको सलाम किया जाए सुबह शाम। इमाम ज़माना को आपने क्या तोहफ़ा भेजा, आज का बेहतरीन तोहफ़ा उनके लिए क्या है? आज का बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि अपने जो वालिदैन हैं, जो गए गुजरे, जो हमारे से बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए हदिया करें और इमाम के लिए दुआ ही करें कि हमें वो तौफीक दे कि हम उनके ज़हूर के लिए हाज़िर हों और अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम कुछ हासिल कर। यहाँ से 24 जुम्मा है, हमें पता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए अपनी कुछ दुआएं चाहिए। आपने इमाम ज़माना को क्या तोहफ़ा भेजा, आज के दिन के हिसाब से बेहतरीन तोहफ़ा क्या है? मनाजात वगैरह हैं, दुआएं वगैरह, तस्बीहात हैं, जो कर सकते हैं इमाम के लिए वो करते हैं आज के दिन। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फ़हीम नकवी कहते हैं मुझे। अच्छा, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? देखिए, अज़ादारी जो है 14 साल से चली आ रही है, लेकिन हमने क्या सीखा ये हर शख्स के अपने रवैयों पे डिपेंड करता है। जो अगर हम आजकल के दौर में रहें कि माशाल्लाह अज़ादारी बहुत बढ़ गई है, हर जगह अज़ादारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिस पे दिल दुखता है कि मतलब अज़ादारी तो बहुत हो रही है लेकिन मार्फत के बग़ैर हो रही है, मार्फत और शऊर के बग़ैर हो रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें अज़ादारी में डाल दी गई हैं कि जो एक समझदार मोमिन के लिए बड़ी तकलीफ़ दे है। हम इमाम ज़माना के मानने वाले, उनके दाई हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपने रवैयों से इमाम को रुलाते भी होंगे और इमाम हमसे बहुत मुझे बहुत डर लगता है इस बात से कि जो हमारी अज़ादारी में जो मामला चल रहे हैं इसको एक रस्म बना दिया है। मतलब कोई उसमें वो शऊर, वो मार्फत नहीं है जो एक खुलूस होता था पहले। आज से अगर आप 30-35 साल पीछे चले जाएं कि वो जो दौर था जब दाल से बढ़ते थे, नमक पारे बढ़ते थे, वो दौर बहुत अच्छा था, उसमें सादगी थी, अज़ादारी में शऊर और मार्फत नज़र आती थी। लेकिन अब ये माहौल बहुत डिफरेंट हो गया है। तो बस मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जो अज़ादारी हो रही है बढ़ तो रही है लेकिन शऊर के बग़ैर। ये बताएं, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है? आज़ादारी हमारे को इंसानियत सिखाती है। अहल बैत वो रास्ता है पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढो वो नहीं मिलेगा सवाए मौला हुसैन के सिवा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम हैदर है। अच्छा, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? देखें, अज़ादारी तो हमें ये सिखाती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का मकसद क्या था, लेकिन बहरहाल अभी हम उससे कुछ फासले पे हैं। अज़ादारी तो हम करते हैं, इमाम हुसैन का नाम भी लेते हैं, लेकिन जो उनका मकसद है उसमें अभी जो है ना हमें काफ़ी मतलब गौर व फिक्र करने की और अमल करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इस तरफ आएँ कि इमाम हुसैन का सिर्फ ज़िक्र किया और ज़िक्र करके नशिश बर्खास्त हो गई, उसके बाद हमने उस पर अमल क्या किया, वो जो एक फ़लसफ़ा हमें करबला ने दिया, मतलब उसमें अगर कोई हम अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज कर रहे हैं या हमारे किसी अमल में बेहतरी आ रही तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर ये एक एक्सरसाइज है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शहाना जाफरी है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? अज़ादारी से हमारे अंदर एक तो इत्तेहाद, इत्तेफाक आता है और दूसरी बात यह कि हम लोग जो है ना उसमें मुनज़्ज़म होते हैं, मुत्तहिद होते हैं और दीन के ऊपर चलने की हमें वो देती है, सबक देता है और हमें अपने इमाम हुसैन सलाम की उसकी मार्फत होती है, इमाम ज़माना की मार्फत होती है हमें। और हम सब जो हैं वो एक जगह मुत्तहिद होकर और हमें चाहिए कि हमें ना उसको लेके आगे इस तरह बढ़ें कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उम्मे हबीबा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा?
आज़ादारी तो हमें सब कुछ सिखाती है बेटा, सब कुछ। हमने तो ये सीखा है कि सिवाय फ़र्श हुसैन के और कुछ है ही नहीं हमारे लिए। हमारी दुनिया में जो कुछ है नमाज है, उसके बाद इमाम हुसैन का फ़र्श है बस। माबूद का शुक्र है कि उसने ज़िंदा रखा है, भी पता नहीं क्या काम मुझसे लेगा भी। और जिंदा जितने भी हैं सब दुश्मनान अहले बैत नेस्त और नाबूद हों, और जो परवरदिगार हुसैन के मानने वाले हैं उनको दुनिया की कोई बीमारी कोई परेशानी ना हो, ज़िंदा रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसन है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? आज़ादारी सबसे पहले तो हमें मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी ये सब सिखाती है, और नज़्म व ज़ब्त ये सब कुछ हमें आज़ादारी से सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? लियाकत हुसैन। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? हज़रत अली ने हमको जो सिखाया तक़वा है, वो पहला जो हमको उनका है। इमाम मुत्तकीन है, वो चाहते हैं कि अली वाले भी तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारें। तो सवा दो महीने जो हमारे हैं प्रैक्टिकल लाइफ इसीलिए होती है हमारी, ताकि हमारे मजालिस ये इसीलिए होती हैं ताकि हमें तरबियती नशित से होती हैं। इसमें हम चाहते हैं कि पूरे 12 महीने एक किरदार के तौर पर दुनिया वालों के सामने पेश हों, ताकि वो लोग हमको दुनिया से बिल्कुल अलग समझें कि ये दुनिया से अलग लोग हैं। और वाकई अगर जो लोग होते हैं इस किस्म के, वो नज़र आते हैं वली वाले, और उनको जो है ना देख कर लोग जो है वो कहते हैं कि हाँ वाकई अली के जो तालीमात हैं वो यही हैं जो हैं। तमाम मामलात में मतलब दुनियावी दीनवी हर चीज़ में ना बिल्कुल उनके जो ना लाइफ अलग चेंज होती है। तो इसमें जो है वो हज़रत अली का तो यही पैगाम है, उन्हीं ने ये लेसन दिया हमको। अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? जब हम अज़ादारी के लिए आते हैं ना, अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे, हम यहाँ से कुछ हासिल करके जाएंगे, ठीक है ना। जब वहाँ बैठने के लिए नहीं आते, हम वहाँ अपना टाइम पास करने के लिए नहीं आते। सबसे पहले हमारे को दुनिया से दूर होना चाहिए जब हम अज़ादारी करने के लिए आते हैं। और दुनिया से दूर का मतलब है कि पहले मोबाइल बंद करें, और उसके बाद मेन पॉइंट ये कि वो जो हम लोगों से जो बातें करते हैं, जो सिर्फ मिलते हैं, तो वो बाज़ारी नहीं हुई, वो सिर्फ टाइम पास करना हुआ। हम यहाँ से कुछ हासिल करके जाएँ, ये हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हम अज़ादारी के लिए आएँ, हम वहाँ से हासिल करके जाएँ, ना कि हम वहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आएँ और खाने पीने के लिए आएँ। दैट्स द मेन थिंग पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुझे सैयद मोहम्मद ज़ैदी कहते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? कि बात यह है कि आज़ादारी किसी ज़माने में हमें सिखाती थी, सुने प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, और फिर इब्तदाई पाकिस्तान की बात, लेकिन इस वक्त हमें सिखा वजह और हमारे मासूम जो में कुछ गलत किस्म की बातें भी फैल रही हैं, समझें, लिहाजा इनको रोकने की ज़रूरत है। आज़ादारी अपनी बड़ी अहमियत रखती है, इस्लाम की बुनियाद वाक़या करबला ही से है, सुने। अगर इसके ऊपर किया जाए तो हमें इस्लाम फैल सकता है और हर शख्स मज़हब इस्लाम को कबूल कर सकता है। दीगर ममालिक में कहीं भी फ़िरक़वारियत या ग्रुपियत या सूबाइयत नहीं है, सुनना, सिवाय पाकिस्तान के। और इसी वजह कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ ये फ़िरक़वारियत को आता है, और इसको इमाम हुसैन का जो मकसद वाक़ कर वो है उसको मनफी असरात के तहत पेश किया जाता है। लिहाजा इसको बंद किया जाए और ये कोशिश की जाए कि ये करबला का के वाक़े को मरकज़ इस्लाम बनाया जाए। बुनियादी इस्लाम यही है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अशरफ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? आज़ादारी हमें इंसानियत का दर्ज देती है, भाईचारगी का दर्ज देती है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का दर्ज देती है, मोहब्बत, आपस में मिलजुल के रहने का दर्ज देती है, इस्लाम की बका का दर्ज देती है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, सैयद खिज़र हुसैन। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? अज़ादारी का पूरा ताल्लुक़ करबला से है, और करबला से ताल्लुक़ का मतलब है कि ये हमें इंसानियत, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, ये तमाम चीज़ें सिखाती है। ज़िंदगी में हम आहंगी सिखाती है, तर्ज़ ज़िंदगी सिखाती है, हर गम से किस तरह निपटा जाता है वो सिखाती है। यानी पूरी मुकम्मल जो ज़िंदगी है उससे इस अज़ादारी से बाहर नहीं है। और ये अज़ादारी जो है, अगर जो करते हैं मजलिस, मातम, ये सब चीज़ें, इसका कोई ना कोई इसकी पीछे दलील भी है और हिकमत भी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अज़ादारी हमें क्या सिखाती है, हमने क्या सीखा? आज़ादी ये हमारे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक हिस्सा है। हम जिंदा हो,
या दुनिया में हो या ना हो, आज़ादारी हमें सिखाते हैं इंसानियत, अखलाकियात, अदब, यानी कि ये सारा चीज़ आज़ादारी से हमें मिलते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के ज़माने में कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अभी भी फ़ायदे हैं, क्योंकि जो अब चूँकि अब एक जनरेशन गैप है और न्यू जनरेशन इस बात को उस पर बिलीव करती है कि ये मेरे ख़्याल में जॉइंट फैमिली वेंचर जो है वो सही नहीं है, लेकिन मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि इसमें अभी बहुत सारे मसाइल हल होते हैं अभी भी लोगों के, और अगर हम इंडिविजुअली अगर इसको करते हैं, फैमिलीज़ को देखते हैं, तो वो फिर सिवाय इसके कि मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लिहाजा जॉइंट जो फैमिली सिस्टम है वो मैं समझता हूँ पहले भी बेहतर था, और आज भी अगर इसको लोग अपनाएं तो ये बहुत बेहतर है। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के वक्त में कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम डिपेंड करता है कि फैमिली के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। मतलब जो लोग फैमिली आपस में रह रहे हैं, अगर उनके ताल्लुकात मोहब्बत वाले, प्यार वाले हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है जॉइंट फैमिली सिस्टम। लेकिन अगर दिलों में कदूरतें और इस किस्म की बातें हों, बहुत करीबी रिश्तों में आजकल आपको पता ही है कि मतलब कोई किसी से दिल में कुछ लेके बैठा हुआ है, किसी से दिल में कुछ, अगर इस सूरत में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फिर रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अगर बुज़ुर्ग हैं घर में तो कोशिश किया जाएगा जब तक बुज़ुर्ग हैं उनकी मौजूदगी में जॉइंट फैमिली सिस्टम रहे। लेकिन जब देखें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसे हालात पैदा हुए कि एक दूसरे के लिए तकलीफ़ और परेशानी के सबब बनने, तो फिर मैं समझता हूँ कि अलग हो जाना चाहिए। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम तो आजकल के ज़माने में बहुत बेहतरीन है, इसलिए कि अगर कोई हम सब साथ रहते हैं तो एक दूसरे के गमखार होते हैं, मददगार होते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसके देख लेते हैं, और अगर बहू है और बच्चे हैं तो सास का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को देखे। उनको ये नहीं सोचे कि नहीं ये बहू के बेटे के बच्चे हैं तो बहू ही देखे। उनको चाहिए कि वो भी वो रखें, और बहू को भी चाहिए कि वो अपने घर को जो है ना वो एक लेके चले। सब चचा ताया सब एक दूसरे के हमदर्द हों, गमगुसार हों, एक दूसरे के ऊपर वो करें, एतमाद करें, हर दूसरे को हर एक दूसरे के हमदर्द हों और हर एक के साथ वो रहें। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के ज़माने में कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बशर्ते कि लोग इसको तस्लीम करें। जॉइंट फैमिली जी अकेले की कोई लाइफ नहीं है हमारी नज़र में। वैसे तो लोग ज़्यादातर जॉइंट फैमिली नहीं पसंद करते हैं। 100% लोग अपना ही चाहते हैं कि सेपरेट ज़िंदगी बसर करें, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र में हमने जब तक अभी तक जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने दुनिया में बहुत इज़्ज़त दी है, आगे उसकी मर्ज़ी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के ज़माने में कैसा है और इसके क्या फ़ायदे हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो हमारे लिए बर्दाश्त है। हम अपने आप को ये रखें कि हम बर्दाश्त कर सकें, जिस तरह हम अपने पेरेंट्स को बर्दाश्त करते हैं, आगे वाली फैमिली को भी बर्दाश्त कर सकें। और जब वो कुछ भी कह सकते हैं तो हम भी कुछ सुन सकते हैं। जब हमें सुनने की अलामत नहीं है तो हम बर्दाश्त की क्या अलामत होगी? हम अपने अंदर बर्दाश्त करें। और ये चीज़ है कि मेन पॉइंट ये है कि जब बेटे तुम अपने घर से जो कुछ लेकर आ रही हो वो हमें दो, ना कि हमसे तुम हासिल कर। क्योंकि हम जिस फैमिली को लेकर आ रहे हैं वो लड़के ने जिस तरह अपने घर में जिस तरह गुजारी है वही सोच कर आगे यहाँ पढ़ें कि हम भी यहाँ भी गुजार रहे हैं, ना कि हम यहाँ या फिर घर तोड़ने के लिए आए या घर किसी को। हम सबसे पहले ये लड़की को सोचना चाहिए मैं वहाँ जा के उनको बसाऊँ, ना कि मैं उसको लेके जाऊँ। देखिए, जॉइंट सिस्टम किसी ज़माने में बुज़ुर्गों की अहमियत होती थी। आजकल बुज़ुर्गों की अहमियत मीडिया ने ख़त्म कर दी। सुन रहे हैं हम, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मीडिया हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है। लिहाजा जॉइंट सिस्टम में किफ़ायतशारी भी है, फ़ायदा भी है, लेकिन जब आप ख़ुद बैठ कर के बच्चों के साथ टेलीविज़न देखेंगे रात के 10 बजे तक और मैच देखेंगे और ये करेंगे तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। लिहाजा ये मीडिया और टेलीविज़न जो है यही हमारे मौजूदा जॉइंट सिस्टम को और हमारी फैमिली को और हमारे इस्लामी कल्चर को बर्बाद कर रहा है। इसमें क्रिएटिव और पॉजिटिव जो फ़ायदे हैं वो बहुत कम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के ज़माने में कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत ज़रूरी है जॉइंट फैमिली। भाई एक दूसरे की हेल्प आउट होती है, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ में खड़े रहते हैं। आज हम लोगों ने जॉइंट फैमिली छोड़ दिया जिसकी बहुत से मामलात खड़े हो रहे हैं, हर घर में परेशानी है। जॉइंट फैमिली बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के ज़माने में कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं?
دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس چیز کو بالکل ہی وہ ہے کنڈیم ہے یہ، کیونکہ الگ الگ رہیں لیکن میل جول رکھیں. مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں صاف صاف کہ رہیں الگ اور میل جول رکھیں، یہ چیز ہے بات. اس کے بعد اگر آپ اس میں فائدے وہ نقصان دیکھیں تھے تو ماحول کے حساب سے الگ الگ کنڈیشن ہے. علی کا شعر ابھی صبر کے کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے. آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن کہاں ہیں ہم. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.